In this video, we'll discuss the following points. We tell you about how to crack JEE main exam with a score of 250 plus. We tell you about its strategy. We also tell you that is it really tough to crack the JEE main exam? We tell you important topics for JEE main preparation subject wise. We give you a subject wise strategy which is to be followed to get a rank under 500. We tell you about a 1 month revision strategy to clear JEE Main 2020. We also tell you about role of coaching institutes for JEE Main preparation. We tell you about considering a year drop. Is it feasible or not? We have answered it in detail. And we also tell you about the best time to attempt JEE Main exam. Should it be January or should it be April, and why? To know more, watch the complete video. Hello everyone and welcome back to another episode of The Conversations. Today we have with us a very versatile personality. He's into teaching profession since the past 20 years. He has taught more than 25,000 students and more than 2,000 of his students have passed from NITs and major IITs of the nation. This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, civil services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good All India ranks selection ratio from coaching centers. Yes everyone, I'm talking about Mr. B.N. Mishra. Welcome sir to our show. थैंक यू सर. सर कमिंग टू द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जेई मेन है इसको कैसे क्रैक किया जाए और किस तरह से इसमें 250 से ज्यादा का स्कोर लाया जाए. सर जेई मेन क्रैक करने का हमारे पास एक स्ट्रेटजी होता है जिससे हम कहते हैं P4 स्ट्रेटजी. ओके. P4 स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस. ये हमारा एग्जैक्टली 4P प्लान होता है. तो इस 4P में पहला काम मेरे पास क्या होगा, प्लान बनाएं. प्लान का मतलब क्या हुआ, हमें आज क्या चीज पढ़नी है, क्या हमको पढ़ाया गया है, कितनी ग्रेस्पिंग हमको रखनी है. उसके बाद उसकी प्रिपरेशन पर हम काम करें. सेकंड नंबर, जब हम उसकी प्रिपरेशन वर्क कर रहे होते हैं उसके बाद हमें उसको प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए जिससे कि हमारे पास प्रैक्टिस भी रहे अच्छे से. जब प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और आपका प्लान तीनों एक साथ काम करता है तो उसका रिजल्टेंट 4th P के रूप में परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर मैं इस तरह के वर्क को करता हूं तो डेफिनेटली हमें 2P स्कोर करना आसान है. अगर ऐसा काम नहीं करते तो डेफिनेटली वो एक टफ टास्क आपके लिए हो सकता है. ओके, तो 4P स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक बच्चे को स्कोर करना है और 250 से ऊपर लाने हैं. सर क्या ये 250 का जो स्कोर, हम जिस स्कोर की बात कर रहे हैं 250 बार बार, क्या ये टफ है? क्या 250 का स्कोर करना टफ है या डुएबल है? नहीं सर, ये डुएबल है. टफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए आपको जो मैंने अभी पहले 4P प्लान के बारे में बताया उस पर लगातार वर्क करते रहना पड़ेगा. अगर आप इस पर लगातार वर्क नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि आज के डेट में पर पेपर 75 क्वेश्चन है, उसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स, इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं. इन 75 क्वेश्चन में जब हम पर सब्जेक्ट 21 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तब जाके मुझे 250 प्लस का स्कोर पॉसिबल होगा. और इसके लिए डेफिनेटली हमें 4P प्लान को रेगुलर वर्क करना पड़ेगा. अगर इसको मैं रेगुलर वर्क नहीं करता हूं तो डेफिनेटली हमारे पास 250 का स्कोर पॉसिबल नहीं हो पाएगा. So
विश्वास सर का कहना है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलर वर्क करते हैं और 4P प्लान पे चलते हैं तो ये स्कोर अचीवेबल है, काफी डुएबल है। सर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें प्रिपरेशन की, टॉपिक्स की, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज हमें बताएं प्लीज। किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है? सर देखो, अगर मैं बात करूं स्पेशली जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेई मेन में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स ओके, है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। अब क्या होता है कि कुछ आपके जो टॉपिक होते हैं वो काफी इजी होते हैं। जैसे मैं मैथ्स का अगर एग्जांपल दूं, तो उसमें एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, जी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वो चैप्टर्स हैं जिससे हर साल एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये काफी इजी होते हैं। तो हमें इन पर फोकस करना चाहिए कि इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करें और आसानी से स्कोर बनाएं। देन हमें ये भी पार्ट ध्यान देना चाहिए कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें देखो मैथमेटिक्स का पहला पार्ट होता है कैलकुलस का सेक्शन। कैलकुलस के सेक्शन में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेजर एरिया हैं जहां पर हम आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं और यहाँ पर पढ़ना भी और समझना भी हमारे लिए आसान होता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में आपके पास कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी आईआईटी में नहीं पूछा जाता, बट उसका मेजर रोल जेई मेन में है। इस जेई मेन में इससे 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं हर साल। इस तरह से अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, कम्युनिकेशन, आपका कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स, देन आपके पास मैकेनिक्स, ये वो एरियाज हैं जहां पर हमें ज्यादा अच्छे से वर्क करना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सेक्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नॉर्मली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड होता है और ये प्योरली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों को ये सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि उनको एनसीईआरटी के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके। सर बहुत बहुत शुक्रिया सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन हमें देने के लिए। एक चीज और जानना चाहूंगा कि इंडिया में हम सब कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड होते हैं रैंक से। ऑल इंडिया रैंक क्या आई, स्कोर क्या आया, क्या स्कोर आया, रैंकिंग क्या रही है। तो 500 तक की मुझे रैंक लानी है, मतलब AIR 1 से लेकर अगर मुझे AIR 500 तक के बीच में कहीं अपने आप को पोजीशन करना है, तब मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि तो एग्जाम हर देखो कोई दे रहा है, स्ट्रेटजी बट हम अगर मुझे टॉप 500 में आना है तो मैं क्या करूं? देखो सर, मैंने स्ट्रेटजी बहुत पहले से आपको दे दी कि स्ट्रेटजी में हमें 4P प्लान को तो रखना ही रखना है। ओके, उस 4P प्लान पर रेगुलर 1 ईयर का वर्कआउट आपका होना चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन अगर ये बात हमें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो जी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम ज्यादा स्कोर कर पाए। अगर मर्जी हमारी बहुत है मगर हमारी एक्यूरेसी नहीं है तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे और नेगेटिव एग्जाम नेगेटिव और होगा, रैंक हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को ये बात देना चाहते अपनी तरफ से जब भी क्वेश्चन करते क्वेश्चन फोकस है जिन उनका concept बहुत अच्छे से क्लियर है, जिनमें मिस्टेक का बिल्कुल नहीं है, अगर वो इस तरह से हम करेंगे और टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली उनके लिए 500 रैंक किस करना बहुत ही इजी होगा, प्रोवाइडेड एक्यूरेसी एंड स्पीड मेंटेन। ओके। तो एक्यूरेसी एंड स्पीड की सर ने बात करी और सर ने बोला अगर एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रहती है तो 500, टॉप 500 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सर सारे बच्चे जरूरी नहीं हो पाता कि पूरा सिलेबस कवर कर पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 50% सिलेबस कर पाते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 80% सिलेबस कर पाते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या इनको भी कोई अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अगर कोई एवरेज बच्चा है या कोई स्मार्ट बच्चा है? देखो, अगर आपके पास कोई एवरेज है और वो अंडर 500 का गेन करना है तो एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि कम से कम वो टॉपिक को जाके ब्रीफ चीज का पढ़े, लेकिन टॉपिक को पढ़ना चाहिए वो, तो वो हर टॉपिक नहीं पढ़ेगा क्योंकि जनरली जेई में का एग्जाम है
उसमें टॉपिक सेशन पूछ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को अच्छा इसको कर पाएगा तो टॉपिक हर एक पढ़े, भले नोट्स पढ़े, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी से कम टाइम ज्यादा रिवाइज करता है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना उसके लिए अच्छा होगा। और इस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो एक हमारा एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उन्हें सॉल्व किया जाए तो कहीं ना कहीं स्कोर पे अच्छा इंपैक्ट आता है। सर अगली चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जेई मेन 2020 की अगर बात करें तो तकरीबन 1 महीना रह गया है, तो इस 1 महीना में अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम से 1 महीने पहले की स्ट्रैटेजी? सर देखो, या एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान दें तो जो एग्जाम मेरा होने वाला है वो 3 जुलाई से हमारा एग्जाम हो रहा है, 3 जुलाई से 23 जुलाई बीच में। और अगर मैं अभी से करूं हमारे पास 40 डेज टाइम है। इस 45 डेज का जो टाइम इसको हमें ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि हम सब टॉपिक्स पर स्टूडेंट गेम देखते रहे, जैसे T20 गेम होना सेम उसी पैड पर कि हमें टॉपिक को लेकर एक चैप्टर पर डे पर सब्जेक्ट कंप्लीट। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का एक चैप्टर हिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ें और उसमें हम प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस लें, अपने कॉन्फिडेंस अपने फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें और इस तरह से रिवीजन रखेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल करके इस 55 डेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके, पॉइंट टेकन सर। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है जेई प्रिपरेशन? सिलेबस जो है लगभग वही है जो क्लास 12th में बच्चा पढ़ता है जी। सर देखो, जो सिलेबस हमारा जैसे स्कूल सिलेबस करूं या की सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस तो हमारा सेम, बट दोनों के जो टीचिंग स्ट्रेटजी है दैट इंटायरली डिफरेंट। एक की जो टीचिंग स्ट्रेटजी है स्कूल की, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजी एक तरह से रेगुलर फिक्स पैटर्न पे चल रही है कि मुझे ये चीज पढ़ानी है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसकी तरह से पढ़ाई करके अपने सिलेबस को कंप्लीट में जो कॉम्बिनेशन है इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कैंपेन हो रहा है चेंज होने की वजह आप कह सकते उनको कुछ अच्छे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना होता है। अगर इस बात पे फोकस नहीं करते तो भले ही सिलेबस हमारा सेम होता है बट हम वो अच्छे से जेईई मेन या जेईई एडवांस के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए हमें सिलेबस के डीप कॉन्सेप्ट पे जाकर के लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। बेसिकली यही स्कूल और कोचिंग में फर्क है और कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहीं पे होता है कि वो इन चीजों पर जाकर के डीपली स्टडी करवाता है, डीपली फोकस करता है, बच्चे प्रीवियस आए क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट या बाई भी सकता है जिससे जो में एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। ओके सर, एक चीज और देखी गई है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि 12th पहले निकाल लेते हैं, पहले बोर्ड दे लेते हैं, उसके बाद 1 साल ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप लेने के बाद प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन लेने के बाद आईआईटी का एग्जाम देंगे। तो कहाँ तक समझदारी होती है ड्रॉप लेने में? क्या ईयर ड्रॉप लेना जरूरी है? क्या ईयर ड्रॉप लेना एक समझदारी का फैसला है स्टूडेंट्स के एंड पे? देखिए सर, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ड्रॉप ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए नहीं अच्छा होता कि आप देखिए, अगर हम सिलेबस 12th या 11th पढ़ रहे हैं और उसी सिलेबस का क्वेश्चन हमारे जेईई मेन जेईई एडवांस में पूछा जा रहा है तो क्यों ना मैं साइमल्टेनियसली इस चीज को करके अपने ईयर को बचाऊं और आसानी से एग्जामिनेशन भी क्रैक करूं। बस थोड़ा सा मुझे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। जो हम एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं उस मेथड को छोड़ करके एक स्मार्ट वर्क पे जाके करनी पड़ेगी। अगर मैं स्मार्ट वर्क में पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली उसी 11th और 12th का सिलेबस जेईई मेन और एडवांस में पूछा जा रहा है तो हमें वहां पे ड्रॉप लेना बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम इसको स्मार्टली पढ़ें, उसको समझें और जाकर के उस एग्जाम को दें तो मेरा मानना यही है कि आपका बहुत अच्छा डिसीजन ये नहीं होता ड्रॉप लेने का। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसे ड्रॉबैक होते हैं जो शायद इस चीज को अचेबल उनके पास नहीं होता, खासतौर पर जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं। मान लीजिए उनको अब लखनऊ में या किसी मेट्रो सिटीज में
स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है, स्कूलिंग भी करना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें बेचारे, उनकी मजबूरी होती है। उस सिचुएशन में डेफिनेटली वो अपने होम टाउन से, होम डिस्ट्रिक्ट से 12th पास आउट करते हैं, फिर वो ड्रॉप करके किसी मेट्रो सिटीज में जाकर के किसी कोचिंग में एडमिशन लेके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जैक्टली डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे कि ड्रॉप का कॉन्सेप्ट हमारा फ्लेक्सिबल है या नहीं है। ओके जी सर, एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा है जो कि क्लास 12th में है, तो उसके लिए जनवरी अटेम्प्ट बेहतर रहता है या फिर अप्रैल अटेम्प्ट बेहतर रहता है? सर, इसका मैं अगर अपनी स्ट्रेट जवाब दूं तो सबसे बेस्ट उसका होता है कि वो जनवरी सेशन को एग्जाम दे। जो जनवरी अटेम्प्ट होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं बताता हूँ क्यों ज्यादा फायदेमंद होता है। आप जी अगर देखिए तो एक बच्चे को अगर एग्जामिनेशन देना है, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, बोर्ड एग्जाम, तो सपोज करो कि बच्चा जैसे अप्रैल में जनरली सेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा 12th का। अब बच्चा अप्रैल में बोर्ड सेशन 12th का स्टार्ट होता है और जाके फरवरी मार्च में उसके बोर्ड एग्जाम होते हैं। इसी बीच में जनवरी में उसके जेई मेन के भी एग्जाम होने होते हैं। तो अगर स्टूडेंट लगातार अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक अपने कोर्स को समराइज कर ले, बोर्ड का भी और साथ ही साथ जेई मेंस और आईआईटी का भी, अगर वो कोर्स समराइज कर लेता है तो इसका फायदा उसको ये मिलेगा कि जनवरी अटेम्प्ट में वो अच्छा स्कोर कर सकता है। जब वो जनवरी में एक अच्छा स्कोर कर लेगा तो जो अप्रैल सेशन या भी इस सेशन में जुलाई में जाके एग्जाम हो रहा है, इस सेशन की उसे टेंशन नहीं होगी कि हम बेस्ट 2 कौन सा अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें अच्छा स्कोर लेकर के फिर उसे जनवरी के फर्स्ट वीक में जाके जनरली एग्जाम खत्म हो जाता है। मैक्सिमम अगर गया तो जेई मेन का जनवरी का सेकंड वीक एग्जाम कंप्लीट होता है। तो जनवरी का 15 डेज और अप्रोक्सीमेट आपके पास 15 फरवरी तक यानी 1 मंथ हमें टाइम एडिशनल मिल जाता है, जिसमें हम जाके प्योरली बोर्ड पे फोकस होकर के बोर्ड एग्जाम देकर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जब मैं वहां से बोर्ड एग्जाम देके निकला और हमारा पेपर अच्छा हो गया, तो अब हमें फोकस किस पे करना होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जनवरी सेशन में एक अच्छा स्कोर ले चुका हूं, तो मुझे अप्रैल सेशन की टेंशन नहीं है। और जनरली मई के सेकंड वीक में जाकर के जेई एडवांस का एग्जाम होता है। तो जेई एडवांस पर हम फोकस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जेई मेन का पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर एज वेल एज एडवांस का पेपर अच्छा हो जाता है और सिलेक्शन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जनवरी सेशन बेटर होता है उन स्टूडेंट के लिए जो 12th क्लास में है। ओके, तो जनवरी सेशन बेटर होता है, सर ने बताया, अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, 12th क्लास में हैं। काफी सारे प्रोज गिनाए सर ने। सर, एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट है जो आपको देख रहा है एंड वो जेई की तैयारी करना चाह रहा है, तो आप क्या प्लीज एक बार समराइज कर दीजिए और आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि क्या क्या वो करे ताकि एक अच्छा स्कोर और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ये एग्जाम निकाल सके। ओके सर, मैं देखो आपको बताता हूँ, जैसा मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया, 4 पी पर लगातार वर्क करते रहना। पहला पार्ट 4 पी मतलब आपका प्लान, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एज वेल एज परफॉर्मेंस। इस पर आप लगातार वर्कआउट करें। दूसरा, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी, मतलब क्या हुआ, खुद घर पे आप बैठ करके लगभग एक पेपर पर डे प्रैक्टिस करें और एक टाइम डिसाइड कर लें। आप वहां देखते हो कि आपको 3 आवर्स में पेपर को सॉल्व करना है। 3 आवर्स में पेपर सॉल्व करने मतलब 1 आवर पर सब्जेक्ट। उसका मतलब क्या हुआ, 25 क्वेश्चन आज पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 2.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको बबल फिल भी करना है, उसमें बहुत और भी कोई साइन करें, कुछ और भी करें, तो चीजों भी ध्यान रखना होता है उसी ड्यूरेशन में। तो आपको ये करनी चाहिए कि 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व पाएं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छा सा रास्ता दिखा सकती है। उस प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी पर। देन आपको गेसिंग नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी क्यों ना हो, आपको गेसिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप गेसिंग करते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए हार्मफुल होगा, खासतौर पे तब जब वो नेगेटिव टेम्परामेंट का एग्जामिनेशन होता है। तो आप गेसिंग ना करें। दूसरा, होपलेस मत हो। अगर आप एग्जामिनेशन में होपलेस हो जाएंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। होपलेस नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने को अंदर से मोटिवेट रखना चाहिए। जैसे 3 इडियट में था ना कि जी आप अगर देखें तो 3 इडियट मूवी में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट शो किया गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल से सब कुछ अच्छा नहीं होता, बट ऑल इज वेल से इतना हमें ताकत जरूर मिलती है कि हम उस चीज से, तो उस प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं। अपने को हमेशा सुपीरियर माने,
अगर ये बातें एग्जामिनेशन में आप ध्यान देते हैं, डिमोरलाइज नहीं हुए, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। मैं सभी अपनी से जुलाई अटेम्प्ट बेस्ट देता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे बीएन मिश्रा सर, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप अटेम्प्ट देने वाले हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 P's की उन्होंने खास तौर पे बात करी और बार बार एम्फेसिस दिया है अपने 4P फॉर्मूला पर। तो हमें उम्मीद है आप इस 4P फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाते हुए। ये वीडियो एडुखोज आपके लिए लेकर आया था, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, Civil Services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good all India ranks selection ratio from coaching centers.